Bismillahirrahmanirrahim. Ideology, a form of social or political philosophy in which practical element or as prominent as theoretical one. और फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि आइडियोलॉजी जो है ये इट वाज फर्स्ट यूज इन फ्रेंच आइडियोलॉजी या आइडियोलॉगी फ्रेंच में इसको इस तरह हम प्रोनाउंस करते हैं और ये जो आपका फिलोसफर था डी ट्रेसी इन्होंने शॉर्ट नेम फॉर द साइंस ऑफ आइडिया साइंस ऑफ आइडियाज को हम क्या कहते हैं आइडियोलॉजी कहते हैं साइंस ऑफ आइडियाज एज द स्टडी ऑफ ओरिजिन इवोल्यूशन एंड नेचर ऑफ आइडियाज ठीक है आइडियोलॉजी जो है ये एक फ्रेंच फिलोसफर डी ट्रेसी ने uh, उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस कराया था और ये एज इट इज़ यूज एज अ शॉर्ट नेम फॉर द साइंस ऑफ आइडियाज़ इसके लिए ये यूज़ होता है ठीक है फॉर द एज द स्टडी ऑफ ओरिजिन इवोल्यूशन एंड नेचर ऑफ आइडियाज़ की ओरिजिन को उसकी इवोल्यूशन को उसकी नेचर को हम इसमें पढ़ते हैं तो इसको आइडियोलॉजी कहते हैं अच्छा पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है इसको हम देखते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड डिफरेंट स्कॉलर्स वो इसको किस तरह देखते हैं ठीक है तो डॉक्टर असलम जो है वो इसको इस तरह देखते हैं वो कहते हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज द नेम ऑफ मोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ्स according to Islam and also of saving from conflicting ideologies वो डॉक्टर साहब इसको इस तरह देखते हैं कि आइडियोलॉजी जो पाकिस्तान की है वो एक इंडिविजुअल और कलेक्टिव इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी को हम मोल्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड ऑल्सो वी सेव it from different conflicting ideologies. Then we will study about the historical aspects of ideology of Pakistan, that how it evolved, and we will see it. Okay, uh, so let's see about introduction. That historical experience provided the base subcontinent not only faced a struggle of political supremacy but was a clash of two social orders. इसमें हिस्टोरिकली हम इसको देखते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट में था उसमें सिर्फ पॉलिटिकल सुप्रीमेसी का इशू नहीं था स्ट्रगल नहीं था बल्कि एक सोशल ऑर्डर का क्लैश भी चल रहा था यू ऑल ऑफ यू नो दैट देयर वाज टू कल्चर basically Hindu and Muslim. So there was a conflict, a constant conflict among Hindu and Muslim that was not only politically but a social order, a social conflict always remained constant in the subcontinent. Historically, you all aware of that, okay? And then Allama Iqbal gave it a philosophical explanation so ये तो practically it was present, but Allama Iqbal gave it a philosophical touch and a philosophical explanation, and that's why. And then it converted into practical ground by Qaid Azam. Qaid Azam translated the political philosophy of Allama Iqbal, and it changed and it translated into political reality. So all of you are aware of this already, but we will study it in a detailed and a critical way that what was the major issues at that time, how the Pakistan ideology evolved, and what was the role of the reformers and Pakistan ideology, and how uh, peacefully we achieved the Pakistan dissolution and then Pakistan एज अ कंट्री ठीक है इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे देन एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी को देखें टू नेशन थ्योरी जो है वी विल स्टडी एट एनी डेप्थ बिकॉज द मुस्लिम नेशनलिज्म इससे पहले एक पैन इस्लामिज़म का एक वेव चला था सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी के टाइम में और उसने पैन इस्लामिज़म का कॉन्सेप्ट दिया था कि all all Muslim, there is no boundaries in Islam and all Muslim are brother, and he gave a concept of brotherhood in all over the world. Pan-Islamism means there is no boundary, there is no any separate country of any Muslim. But Allama Iqbal
then he gave a concept of a Muslim state, that it is possible that after the Treaty of Westphalia, which was in I think 1648, when Treaty of Westphalia came into being, and as a result of Treaty of Westphalia, the nation state, the concept of nation state came into being. ठीक है, जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ और ये कॉन्सेप्ट जो है ये वजूद में है कि नेशन स्टेट थ्योरी, कि हर एक कौम की अलग अलग स्टेट होगी, तो उस वजह से फिर अल्लामा इकबाल भी पहले उम्मत की बात कर रहा था, अभी बाद में भी कर रहे थे, लेकिन उसने फिर ये गुंजाइश निकाली है, ठीक है, एक मुस्लिम नेशनलिज्म में आप एक अलग से जो है ना अपनी कौम और अपनी बाउंड्री आप बना सकते हैं, कि उस बाउंड्री में आप उसको जो आपकी आइडियोलॉजी है उसको एक्सपीरियंस करके आप एक मॉडल के तौर पे पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो देन दैट्स व्हाई एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी आ गया कि Muslim and Hindu, they were different, and every aspects, like in socially, politically, economically, every aspect, they are different from each other, and that was the beginning of the Muslim nationalism. First, the Hindu, first, all of you lesson it's too many time about Qaid Azam. That Qaid Azam, there is a famous quote of Qaid Azam that he said that Pakistan was came into being on that day when the first Hindu accepted Islam. ठीक है, उसने कहा था कि जब पहले हिंदू ने इस्लाम कबूल किया उस दिन पाकिस्तान बना था। तो ये एक मुस्लिम नेशनलिज्म का बिगिनिंग हुआ, और फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि Muhammad bin Qasim जब से आए हैं, the first Muslim invader, when he came here and he invaded so many parts of the India in 712 AD, and then Mahmud of Ghazna launched 17 attacks, and the Muslims, Sufi like Ali Hajveri, Miran Hussain, Zanjani entered subcontinent. So many Muslim reformers, Muslim Sufis, they were entered into subcontinent, and as a result of that, the evolution of two-nation theory, it's preceded. It's you know. They promote the two-nation theory. And then, Qutbuddin Aibak, he prominently he established Muslim dynasty in India. We will we will study inshallah Delhi Sultanates, that what was that, and then after that Mughal dynasties came into being, ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। इसके साथ साथ जो फिर आपका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ कि it was the shattering setback to the Indian Muslim that who were put in the dock. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मुसलमानों को ये अंदाज़ा हुआ कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है, और उन्होंने इसको जंग आज़ादी का नाम दिया, और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इसको गदर का नाम दिया। फिर सर सैयद अहमद ख़ान जो है, ही अवेकेंड एंड ही गाइडेड द मुस्लिम कम्युनिटी थ्रू हैज़ एजुकेशनल ड्राइव, द अलीगढ़ मूवमेंट, it was an educational drive, and that's why the uh, Gandhi said about Sir Syed Ahmad Khan that he was the prophet of education, uh, उसने उसको प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन का नाम दिया। अच्छा, इसके बाद फिर जो 1885 में व्हेन द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस was founded, so it indicate the Indian nationalist movement under the British, and a reaction, or you can say इससे पहले भी मुसलमान जो है वो थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब से 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस was came into being, then the Muslim obviously and a reaction, they found it their own separate पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1906, ठीक है। उसमें फिर हिंदू ने सॉरी मुसलमान ने अपने लिए टू नेशन थ्योरी को एक प्रैक्टिकल उसको जामा पहनाया, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सूरत में वो नज़र आया, ठीक है। Acha, initially they demanded safeguard, constitutional guarantee, and a federal system of government with the power to the provinces.
ओके। पहले 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 आप वो क्या कर रहे थे कि उसके डिमांड जो है वो विद इन लिमिट थे। वो किस तरह के वो चाहते थे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दो, प्रोटेक्शन, दे वांट प्रोटेक्शन, दे वांट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, and they want a federal system of government with the power to with the autonomous body of provinces. तो वो तो पहले ऑटोनोमस प्रोविंस को ऑटोनॉमी देना चाहते थे, एज अ फेडरल सिस्टम को देखना चाहते थे। इस तरह उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल हमें मुसलमानों को एक प्रोटेक्शन के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के थ्रू प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन जब उनको ग्रेजुअली दे नो दैट with Hindu, it is not possible to they, because Hindu were not cooperating with Muslims. That's why the last demand was to सेपरेट स्टेट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सेपरेट स्टेट का वो शुरू किया। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो आप पढ़ेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ, या 1909 में, इस तरह 1919 में, और फिर 28 में, हर एक उसमें उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है उन्होंने कहा कि ये हमें दी जाए। जुदागाना इंतखाबात जिसे कहता है, जुदागाना इंतखाबात इसको कहता है कि इस तरह प्रोपोर्शनल के हिसाब से जिधर मुसलमान ज़्यादा, मुसलमानों को अपने हिसाब से लोग खड़े करने और मुसलमान उसको वोट देंगे, हिंदू अपने लोग खड़े करेंगे वो उसको वोट देंगे। इसको सेपरेट इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने फिर पहले तो सेपरेट इलेक्शन का वो डिमांड किया, लेकिन बाद में उन्होंने सेपरेट स्टेट पे चले गए कि उन्होंने कहा कि इट्स एनफ, ओके, कि नाउ वी कांट live in a same country, that's why। एंड हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी जो है 19 से क्या था, 68 में, सॉरी, वो हुआ था 1868 7 में। हिंदू उर्दू जो उनकी क्या था, हिंदी उर्दू उर्दू कंट्रोवर्सी थी उनके बीच में 1867 में। और उस वजह से क्या हुआ कि मुसलमानों को और भी अंदाज़ा हो गया कि ये हमारे साथ चल नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, जो मुस्लिम नेशनलिज्म है उसके करैक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं कि द फर्स्ट वन इज़ द रूल ऑफ लॉ, सोशलो इकोनॉमिक जस्टिस, इक्विटी एंड फेयर प्ले। Equality of opportunity to all citizens irrespective of their sex, religion, origin, and religious and cultural tolerance, respect for the human dignity and rights, protection of the rights and interest of the non-Muslim, freedom to practice their belief and religion। बहुत ईजी, बहुत सिंपल सी बात है कि मुस्लिम नेशनलिज्म के ये जो है करेक्टरिस्टिक है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, और जस्ट इकनॉम सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जो है कि मस्ट है, और रिलीजियस एंड कल्चरल टॉलरेंस, दैट यू हैव टू live in a peaceful coexistence. You have to tolerate each other opinion, your difference of, you have to tolerate your difference of opinion. So this is the main characteristic of the Muslim nationalism। वो अपने दूसरे को एक दूसरे को स्पेस देना चाहते हैं, और वो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ पे बिलीफ रखते हैं। तो ये एक करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसके साथ साथ रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द नॉन मुस्लिम, एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर बिलीफ एंड रिलीजन। वो नॉन मुस्लिम की प्रोटेक्शन चाहते हैं और वो फ्रीडम देना चाहते हैं कि वो अपने जो है उसको प्रैक्टिस करे। ठीक है, देयर बिलीफ एंड देयर रिलीजन, freedom of speech, freedom of movement, all these things are the characteristic of the Muslim nationalism। अच्छा, ठीक है, ये मेरे ख्याल में टाइम जो है कोई 5 मिनट रहता है, तो काइंडली मैं इसको स्टॉप करके रिकॉर्डिंग आपकी जो क्वेश्चंस है उसको लेता हूँ। ठीक है।